اس آیت نمبر 10 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، تو ہرگز انہیں نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، ہرگز انہیں فائدہ نہ دے سکیں گے انہیں ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ انہیں ان کا کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ انہیں کوئی اولاد فائدہ دے گی۔ تو اس لیے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ کب ہے؟ جبکہ یہی اولاد صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اگر اولاد نیک ہے تو صدقہ جاری ہے، لیکن جب اولاد سے محبت حد سے بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے لگ جائے، جب اولاد سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ اولاد کی خاطر اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی جائے۔ اب مال بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال ہوگا تو بندہ نیکی کرے گا، مال ہوگا تو زکوٰۃ کر دے گا، مال ہوگا تو حج کرے گا، مال ہوگا تو صدقہ خیرات کرے گا، مال ہوگا تو رشتہ داروں کا دوسرے لوگوں کا خیال رکھے گا، انہیں کھانا وغیرہ کھلائے گا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا۔ مال بذات خود برا نہیں ہے، اولاد بذات خود بری نہیں ہے، لیکن جب ان دونوں کی محبت حد سے بڑھ جائے، لیمٹ جب کراس ہو جائے، تو تب اللہ رب العزت نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہم وہ وقود النار، آگ کا ایندھن ہے۔ یعنی یہ انسان، اور جس طرح آگ کا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے آدمی اور پتھر کو قرار دیا گیا، تو یہ مال اور اولاد بھی بعض اوقات جو ہے ایندھن بنے گا، جن کی خاطر آج انسان اسی مال کی خاطر، اسی اولاد کی خاطر اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر یہی جہنم کا ایندھن بنائیں گے، یہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 11، اس آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ، والذین من قبلہم، اور جو فرعون سے پہلے تھے ان کا طریقہ، کذبوا بآیاتنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، فآخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، ان پر گرفت کی ان کے گناہوں کے سبب، ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے، اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت ہے۔ کدابی آل فرعون، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے کہ فرعون کے ماننے والے ان سے پہلے کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کافروں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یعنی جس طرح فرعون والوں نے آیتوں کو جھٹلایا، اسی طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کافر ہیں انہوں نے بھی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو سورۃ آل عمران کے اندر یہ مثال دی گئی ہے، کافروں کی مثال آل فرعون سے دی گئی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا، گرفت کی، اسی طرح ان کے گناہوں پر بھی اللہ رب العزت انہیں پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 12، اس آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا، اے نبی فرما دو، اے محبوب فرما دو ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، تم اٹھائے جاؤ گے، الی جہنم، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ جہنم جو ہے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت ستغلبون سے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر کے اندر کفار کو حضور علیہ السلام نے شکست دے کر مدینہ طیبہ تشریف واپس لائے، تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب جنگی طریقوں سے نہ آشنا ہے، اس لیے شکست کھا گئے۔ جب مسلمانوں نے ان کو، منافقین کو، مشرکین کو شکست دی، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جو قریشی ہیں، کیونکہ قریشی تھے جو حضور سے ان کے مخالف تھے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، کیونکہ بدر کے اندر تو خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو وہاں قتل کیا تھا، ابو بکر صدیق اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ ایک دوسرے کے باپ بیٹا آمنے سامنے تھے، تو کافی سارے رشتہ دار تھے جو ایک دوسرے سے آمنے سامنے تھے، یعنی کچھ اسلام کی طرف سے تھے اور کچھ دشمنان اسلام کی طرف سے تھے۔ تو یہ بھی کہنے لگے اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو وہ نہ آشنا تھے قریش والے، اس لیے مسلمانوں کی شکست ہو گئے، جب ہم سے وہ لڑائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گی۔
तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाज़िल फरमाई, सतुगलबून के अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, व तुहशरून इला जहन्नमा, और तुम जो है जहन्नम की तरफ उठाए जाओगे। और उन्हें ये गैबी खबर दी गई कि दुनिया में मगलूब होंगे, कत्ल किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे, उन पर जिज़िया मुकर्रर होगा और आखिरत में दोज़ख की तरफ हाँके जाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ, कुछ ही अरसे के अंदर यहूदी कत्ल भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, अहले खैबर पर जिज़िया भी मुकर्रर किया गया, और क़यामत के दिन जो है वो जहन्नम की तरफ भी हाँके जाएंगे। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 13, इस आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद कान लकुम आया, तहकीक तुम्हारे लिए है निशानियां, फी फियतैन, दो गिरोह के अंदर, इल्तक़ता, जो दो आपस में भिड़ पड़े, लड़ पड़े, फियतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह, एक जत्था था, एक गिरोह था जो लड़ता अल्लाह की राह में, व उखरा काफिरा, और दूसरा जो था काफिर था, यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, तो उन्होंने आंखों देखा अपने से दुगना समझा। वल्लाहु, और अल्लाह, युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह तबारक व तआला तायीद करता है, जोर देता है अपनी मदद के साथ जिसे चाहता है। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसके अंदर, ला इब्रतल लिउलिल अब्सार, तो इसके अंदर अक्लमंदों के लिए जरूर देखकर सीखना है। अब ये है जो गज़वा बदर के मुतल्लिक नाज़िल हुई कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। गज़वा बदर 17 रमजान 2 हिजरी को हुआ। कुफार तकरीबन 1000 थे, मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 6 ज़िरें थी, 8 तलवारें थी और 70 ऊंट थे। इसके बावजूद मुसलमानों को कामिल फतह नसीब हुई। यौमुल फुरकान कहा जाता है गज़वा बदर के दिन को। 17 रमजान 2 हिजरी गज़वा बदर का दिन यौमुल फुरकान के नाम से मशहूर है। यौमुल फुरकान का क्या मतलब है? हक और बातिल के दरमियान फर्क। क्योंकि बदर में हक और बातिल के दरमियान फर्क हो गया था, क्योंकि मुसलमान जो थे वो हक पर थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह दी, और कुफार चूंकि बातिल पर थे इसलिए उन्हें शिकस्त दी। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, यरौनहुम मिस्लैहिम, जंग बदर में अल्लाह ने मुसलमानों को कई एतबार से मदद की। एक तो फरिश्ते नाज़िल फरमाए, दूसरा ये कि पहले अल्लाह ने मुसलमानों की नजरों में काफिरों को और काफिरों की नजरों में मुसलमानों को कम करके दिखाया, ताकि मुसलमानों का हौसला बढ़े और काफिर मुसलमानों को कलील देखकर लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुसलमानों से जंग शुरू करने में बुज़दिली का मुशायरा न करें। यानी काफिरों को मुसलमानों की नजरों में काम कर दिखाया और मुसलमानों को काफिरों की नजर में काम करके दिखाया, ताकि वो आगे बढ़कर लड़ें। और ये लड़ाई शुरू होने से पहले हुआ। फिर जब लड़ाई शुरू हो गई तो इस आयत में मज़कूर वाक़या जो जिक्र किया गया वो रनुमा हुआ कि उन्होंने उनको दुगना देखा। इस जुमले के कई मानी है, यानी कुफार ने मुसलमानों को खुद से दुगना देखा, यानी मुसलमानों की तादाद कुफार को 2000 नजर आई। कुफार ने मुसलमानों को अपने से दुगना देखा। अब अल्लाह दिखा रहा है, जबकि मुसलमान है 313, अल्लाह उनको दुगना दिखा रहा है। यानी कुफार अगर 1000 है तो मुसलमान 2000 नजर आ रहे हैं। अब दूसरा मतलब इसका यह है कि कुफार ने मुसलमानों को मुसलमानों की तादाद से दुगना देखा, यानी मुसलमान 313 थे तो उनको 626 नजर आए। तीसरा मतलब यह भी है तफसीर कबीर के अंदर कि मुसलमानों ने कुफार को खुद से दुगना देखा, यानी मुसलमानों को कुफार की तादाद 626 नजर आई, हालांकि वो 1000 थे। बहरहाल हर सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद और नुसरत जो थी वो मुसलमानों के साथ शामिल हाल रही। इसके बाद जो अगली आयत है, आयत नंबर 14, इस आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, मुज़य्यन की गई, आरास्ता की गई लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसा, औरतों से, वल बनीन, और बेटों से, वल कनातीरिल मुकंतरा, और सोने चांदी, मिनज़्ज़ाब सोने से, वल फिद्दा और चांदी, ढेर, कनातीर कहते हैं ढेरों ढेर को, मिनज़्ज़ाब वल फिद्दा, सोने और चांदी के ढेर दिखाए गए, बेटों की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत, वल खैल मुसव्वमा, और घोड़े की मोहब्बत, जो घोड़े कौन से थे? निशान ज़दा, वल अनाम, और चुपाए, वल हरस, और खेती, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। औरतें, बेटे, सोने और चांदी के ढेर, निशान ज़दा घोड़े, चौपाए 4 टांगों वाले जानवर, और खेती, ये सब का सब अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास जो है वो अच्छा ही ठिकाना है, जो बेहतरीन ठिकाना है वो अल्लाह के पास है। अब लोगों के लिए मनपसंद चीजों की मोहब्बत खुशनुमा बना दिया गया, औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, माल और औलाद, सोना चांदी, कारोबार, बागात, उम्दा सवारियां, बेहतरीन मकानात की मोहब्बत लोगों के दिल में रची हुई है, जबकि ये सारी चीजें आर्जी हैं।
सारी चीजें आर्जी हैं, इन सब ने एक ना एक दिन फना हो जाना है, और जब आखिरत के अंदर काम आएगी वो चीज काम आ जाएगी जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस्तेमाल की, जो हमने दीन इस्लाम के लिए इस्तेमाल की, जो हमने अल्लाह की राह में दी, सिर्फ और सिर्फ वही काम आएगी। बाकी ये सारी चीजें आर्जी हैं, ये अनकरीब खत्म हो जाएंगी। इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 15, इस आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ए नबी आप फरमा दो, अउनब्बियुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे कोई बेहतर चीज बता दूं, लिल्लज़ीना इत्तक़ू, लिल्लज़ी उनके लिए, इत्तक़ू जिन्होंने परहेजगारी की, जो डरे, इंद रब्बिहिम जन्नात, उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं, तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, खालिदीन फीहा, वो इसके अंदर हमेशा रहेंगे, व अज़वाजुम मुतहहरा, और उनकी सुथरी पाकीज़ा बीवियां हैं, व रिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह ताला की रज़ा है, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने बंदों पर नजर फरमाने वाला है, देखने वाला है। अब सुभान अल्लाह, दुनिया की हकीकत बयान करने के बाद कितने दिलनशीं और हसीन अंदाज के अंदर जन्नत और रज़ाए इलाही की तरफ दावत दी जा रही है। अब इस फरमान का खुलासा यह है कि ऐ हबीब, दुनिया की हकीकत और फनाइयत समझने के बाद तुम लोगों से फरमा दो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औरतें, बेटे, माल और औलाद, सोना चांदी, कारोबार, बागात, उम्दा सवारियां, बेहतरीन मकानात, अच्छी उम्दा और बेहतर चीज बता दूं। सुनो, वो अल्लाह का कुर्ब, वो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह के कुर्ब का घर यानी जन्नत है, जिसमें दूध होगी, शहद होगी, शराब की नहरें बह रही होंगी, और इस जन्नत में परहेजगारों को लिए हमेशा हमेशा का रहना है, और इसमें ऐसी पाकीज़ा बीवियां होंगी जो हर किस्म के जनाना, अवारज और हर नापसंद और काबिल नफरत चीज से पाक होंगी, यानी वहां औरत को हैज नहीं आएगा, और ये जो बीमारियां हैं किसी किस्म की हर चीजों से पाक होंगी, और इन सबसे बढ़कर जो है वो क्या है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी होगी। जन्नत से, दूध की नहरों से, शहद से, शराब से, इन पाकीज़ा सब चीजों से जो बढ़कर है वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी है, जो सबसे आला नेमत है। दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाल दे, दुनिया का हिस्स निकाल कर आखिरत की तलब हमारे दिल के अंदर दाखिल कर दे, ताकि दुनिया की जो नेमतें हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इनकी लालच हमारे दिल के अंदर ना आए। दुनिया की नेमतें हम ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी लालच इतनी ना है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से गाफिल हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन से गाफिल हो जाएं। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 16, इस आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह रब्बुल फरमाता है, अल्लज़ीना यक़ूलूना, वो जो कहते हैं, रब्बाना, आए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, वो जो कहते हैं कि आए हमारे रब हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, आए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, वक़िना अज़ाबन नार, हमें आग के अजाब से बचा ले, तो वो मोमिन है जो ये दुआ करते हैं। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 17, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन, अस्साबिरीन सब्र करने वाले, वस्सादिकीन और सच्चे, वलकानितीन कनात करने वाले, वलमुनफिकीन और खर्च करने वाले, वलमुस्तगफिरीन बिल असहार और पिछले पहर माफी मांगने वाले, यानी सुबह के वक्त। दुनिया के तालबों का जिक्र करने के बाद मौला के तालब यानी अल्लाह की तलब रखने वाले मुत्तकीन का बयान किया गया है। उनके कुछ औसाफ बयान किए गए कि मुत्तकी लोग कौन है, जो इबादत और रियादत के बावजूद अपनी अताअत पर नाज नहीं करते, बल्कि अपने मौला से गुनाहों की मगफरत और जहन्नम के अजाब से छुटकारे का सवाल करते हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं, डटे रहते हैं, गुनाहों से बचने पर डटे रहते हैं, कोई भी मुसीबत आ जाए उसमें सब्र करते हैं, कौल और इरादे उनकी नीयतें सच्ची होती हैं, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो सच्चे होते हैं, वो फरमा बरदार होते हैं, वो आधी रात को रातों रात उठकर रब की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तौबा और इस्तगफार करते हैं, अल्लाह की हुजूर गिरिया जारी करते हैं, मनाजात करते हैं। याद रखें, रात का आखिरी पैर निहायत ही फजीलत वाला है, ये वक्त खलवत और दुआओं की कबूलियत का है। हजरत लुकमान ने अपने फर्जंद से फरमाया था कि मुर्ग से कम न रहना कि वो तो सहरी के वक्त निदा करे और तुम सोते रहो। मुर्ग तो सहरी के वक्त निदा करे लेकिन अफसोस कि तुम सोते रहो। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 18, इस आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ने गवाही दी इस बात की कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, बल मलाइकतु व उलुल इल्म, और फरिश्तों ने और अहले इल्म ने यानी उलमा ने, काइमन बिल किस्त, इंसाफ से कायम होकर, ला इलाहा इल्ला,
उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हुवल अजीजुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वही जो है वो गालिब हिकमत वाला है। अब इसका जो शान नज़ूल है, मुल्क शाम के उलमा में से दो अफराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीना तैयबा को देखा तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहर की ये सिफत है जो इस शहर में पाई जाती है। मदीना के अंदर पहुंचे तो उन्हें शहर देखने से पता चल गया कि ये तो उसी शहर की सिफत है जिसके अंदर आखिर ज़मा पैगंबर ने आना है। फिर जब हजूर की खिदमत में हाजिर हुए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारका और औसाफ करीमा को तौरात के मुताबिक देखा तो फौरन आपको पहचान लिया और अर्ज की कि क्या आप मोहम्मद हैं, ताजदार अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। उन्होंने फिर अर्ज किया क्या आप अहमद हैं, आपने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज किया हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करेंगे, अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। नबी ने फरमाया सवाल करो। उन्होंने अर्ज किया किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, तो उस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई और इसे सुनकर वो जो दोनों शामी उलमा थे वो मुसलमान हो गए। वो कौन सी आयत थी? ये आयत थी कि शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, कि गवाही दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब इस आयत की आपने तिलावत की आप पर वही आई तो वो जो दोनों जो शामी उलमा थे वो सुनकर इसको मुसलमान हो गए। इस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते और अहले इल्म यानी अंबिया औलिया ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इससे मालूम हुआ कि अहले इल्म जो हैं बड़ी इज्जत वाले हैं, अहले इल्म बड़े मकाम वाले हैं, बड़े शान वाले हैं, बड़ी फजीलत वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी तौहीद का गवाह अपने साथ बनाया। अल्लाह फरमा रहा है कि गवाही दी अल्लाह ने और अहले इल्म ने। अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, फरिश्तों ने गवाही दी और अहले इल्म, यानी अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है, फिर फरिश्तों का जिक्र कर रहा है, फिर अहले इल्म का जिक्र कर रहा है। तो इससे अहले इल्म की फजीलत बयान हो रही है। लेकिन उलमाए दीन से मुराद उलमाए रब्बानी है, यानी सही अकीदा और सालिहीन उलमा जिनका जो अमल है इल्म के मुताबिक है। उलमाए रब्बानी वो हैं जो खुद अल्लाह वाले हैं और लोगों को अल्लाह वाला बनाते हैं, जिनकी सोबत से खुदा की कामिल मोहब्बत नसीब होती है। जिस आलिम की सोबत से अल्लाह का खौफ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कमी आए वो आलिम नहीं है, वो जालिम। जबकि आलिम वो है जिसकी अगर आप करीब बैठे तो आपको खौफ खुदा है, आपके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है। अगर आप उसकी सोबत में बैठने से अल्लाह के खौफ और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कमी आ रही है तो समझ लें कि वो आलिम नहीं है बल्कि वो जालिम है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही सही कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये कुरान पाक पढ़ना, सुनना, समझना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मकबूल फरमाए और हमारे जितने भी सुनने वाले हजरात हैं सबके मौता इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं ईमान की हालत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम की मगफिरत कामला फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम को जन्नत और फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत, दीदार, शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।